We start with skin. The first thing that is given to you under skin is एक word दिया होगा शायद first page पे कहीं पे जहाँ पे लिखा होगा अभी पेज पलटाना बंद करेगा चलो स्किन में ऐसा लिखा है that skin is one of an integumentary organ. Integumentary का मतलब तुमको पता होना चाहिए. It basically means it is a covering organ. And for those of you who don't know, skin is an organ. In fact, it is the largest organ. So it is like a layer that covers whole of your body. इसीलिए उसको largest बोला जाता है. And integuments is a word that you have read. कहाँ पे पढ़ा हुआ है पता है? Seed में. Seed में एक layer था जिसको integuments बोलते थे हम लोग. Hence वहाँ से ये word आया that skin is an integumentary organ. इतना समझ में आया? First पैराग्राफ पे कहीं देखो उसका टोटल वेट भी दिया होगा कहीं पे 15%. So 15% of the total body weight is accounted by skin. This is what you have to remember. Fine. समझ आया इतना? Next up we go to quickly on the functions of the skin. तो skin का function देखो first function क्या दिया हुआ है? Can somebody help me? It's called as protection. Protection against what? ये तुमको आना चाहिए सबसे पहले. The protection against UV rays, mechanical shocks, injuries, the germs invasion, and anything else that is given. Loss of water. Prevents excessive loss of water. Start करते हैं पहले से. First बोला UV rays. तुम्हारा skin जो है वो तुमको naturally protect करता है UV rays. Next up mechanical shocks and injury. That means if at all I keep kind of bruise my hand over here, तो ज़्यादातर कहाँ जाएगा? जो भी इंजरी है मैकेनिकल शॉक है वो स्किन ले लेगा उसको विथस्टैंड कर लेगा. Only if it's very massive, then it goes to the muscle and then it goes to the but ज़्यादा से ज़्यादा शॉक या इंजरी कौन ले लेता है अपने पे? It is the skin that withstands it. Next up we had was हाँ तो उसका लेयर ही इतना है that most of the things is taken or borne by this particular skin. Next we have is what germs का एक जर्म्स का भी कुछ दिया हुआ है. तो स्किन है ना तुम्हारा एक प्रोटेक्टिव लेयर है. जब ये स्किन ऐसा है तो जर्म्स अंदर नहीं जा सकते. वेरी सिंपल. और अगर स्किन में कुछ हो गया, कट आ गया, इंजरी आ गया, तो सबसे पहले हम डेटॉल इसीलिए लगाते हैं क्योंकि वो कट आ गया. समझ आया? तो स्किन का जो लेयर है वो आराम से खुल गया है जर्म्स के एंट्री के लिए. स्किन था तो प्रॉब्लम नहीं था. स्किन जैसे कट हुआ या इरोड हो गया थोड़ा सा तो जर्म्स कैन एंटर. Right now, your skin, my skin is not allowing any germs to penetrate inside the layer. ठीक है? You were saying something. One point. Sensation. Sensation की बात करें, skin has receptor cells, special cells. That's the reason if somebody pinches you, you understand. Somebody at least touches you here, you understand. ठीक है? Heat, cold और hotness का तुमको पता चलता है skin से. जब तुम बोलते हो ठंडी लग रहा है या गर्मी लग रहा है, it is because your skin is sending the signals to your brain. Am I clear? Last one prevents loss of water. Skin acts as an impermeable membrane, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी बचाता है तुम्हारे स्किन में. अब ऐसा मत बोलना कि स्वेट होता है ना, स्वेट होता है पर वो स्वेट ग्लैंड्स है, ऊपर एक स्वेट डक्ट है, पोर है, तो वो तो करना है प्रोसेस इसीलिए. अदरवाइज majority of the water is retained in your body by the skin. It does not just allow ऐसे ही water to go out. So this talks about the first function, that is protection. The second one we have is sensation. Second दिया हुआ है. Okay, so sensation any which ways we have covered. You will have to remember sensation में receptor cells present, which helps you to perceive any sensation. This word is important when you write in your exam. It helps. The skin is an organ that helps in perceivance or it perceives a sensation. Okay. Next up, let's do the third one. Temperature regulation. ये important है समझना. Temperature regulation का मतलब क्या है? Your skin will help to regulate the temperature. If it is very hot outside, है ना? बाहर में बहुत गर्मी है, तो तुम्हारा स्किन क्या करेगा? हेल्प करता है स्वेट बाहर डालने के लिए. तो स्वेट जब बाहर आता है और इवोपरेट होता है, it leaves a cooling sensation on your skin. और बुखार क्या होता है? और वो तो अलग है, वो तो जानबूझ के तुम्हारा टेम्परेचर रेज होता है ना. तो स्किन एक्चुअली उसमें हेल्प नहीं करता. ये तुम्हारा रेगुलर डे टू डे का बात है. देन इफ यू आर फीलिंग कोल्ड, तो क्या करेगा? स्किन बेसिकली विल प्रोवाइड इंसुलेशन. दैट मींस इट विल ट्रैप बॉडी हीट इन योर बॉडी ओनली. समझ आ रहा है? तो तुम नहीं तो है ना, तुम अगर ये नहीं होता, स्किन अगर ऐसा बॉडी ट्रैप नहीं कर सकता, हीट को ट्रैप नहीं कर सकता बॉडी में, you would have frozen to death.
अगर टेम्परेचर ड्रॉप डाउन हो जाता। सो टेम्परेचर रेगुलेशन का काम स्किन को दिया हुआ है। एंड आई ऑलवेज से रेगुलेशन, रेगुलेशन का मतलब ज्यादा या कम करना कौन करता है, ये सब ये है स्किन। द नेक्स्ट हेल्प मी स्टोरेज ऑफ फैट, सो आई कैन राइट इट एज फैट स्टोरेज आल्सो। वी ऑल नो, ये अगर नहीं पता तो आज के बाद तुमको बताना चाहिए, स्किन के लेयर के जस्ट नीचे होता है फैट डिपॉजिशन। सारा फैट यहाँ नहीं होता, ऑर्गन्स के आसपास भी होता है, पर अभी हम वो नहीं बात करें। किसकी बात करें? स्किन के नीचे का फैट लेयर। एंड यू हैव स्टडीड दिस एडिपोज टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यू है ना, तो टिश्यू कंटेन्स सेल्स, सेल्स कंटेन्स फैट। अब ये फैट तुमको काम आता भी है, एक तो इंसुलेशन के लिए काम आ रहा है, सेकंड इफ इट ऑल यू आर स्टार्विंग, इफ यू डोंट हैव एनी एक्सेस ऑफ फूड, तब जाके ये जो फैट है वो तुमको बर्न करके एनर्जी प्रोवाइड करेगा। बट इट्स लिटिल लेटर, नॉर्मल कोर्स में नहीं होता, ओनली व्हेन यू आर स्टार्विंग, तुमको खाना नहीं है तब ये होता है। लास्टली वी हैव इस अरे बोलो ना इसके बाद क्या है बेटा? विटामिन डी सिंथेसिस, एक्सक्रीशन। उसके बाद विटामिन डी, ऐसा है? और लास्ट वन कुछ दिया है? ओके, वी टॉक अबाउट एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब अगर पता है तो ठीक है, वरना एक्सक्रीशन इज क्या है? नमक। नमक, नमक ही है क्या? मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला, मालूम है नमक ही बोला, नमक है वो। ऑलराइट, एक्सक्रीशन पागलों की तरह ऐसा मत बोलना कि डाइजेस्टेड, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है उसको बाहर फेंकने को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। नहीं, तुम्हारी बॉडी में व्हाटएवर इज द नाइट्रोजीनस वेस्ट इज रिमूव्ड, दैट इज व्हाट इज एक्सक्रीशन। फॉर एवरीवन हु डज नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज नाइट्रोजीनस वेस्ट, यू हैव हर्ड अबाउट यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ये तीन ही है। यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, which goes in the form of urine. Should I say susu? No, na, urine, na. So all these three are expelled out in the form of urine. बहुत जरूरी है कि यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया बाहर जाए। यूरिया तुम्हारी बॉडी में accumulate होने लगता है तो it can be fatal, very simple। अब ये चीज यहाँ क्यों दिया है? क्योंकि वो तो यूरिन मैंने अभी बोला, but even in sweat there is trace amount of urea। ट्रेस मैंने बोला, शायद दिया भी है परसेंटेज 1%, 0.1% है ना, बहुत अलग हो गया हो बेटा। 0.01% ऑफ द नहीं दिया परसेंटेज। ओके, तो एनीवे आएगा, आगे आएगा, जब तुम स्वेट ग्लैंड्स करोगे ना तब आएगा। तो ये इतना ट्रेस अमाउंट है ना, उसकी आई कैन नॉट से कि किडनी काम नहीं करेगा तो ठीक है ना, स्वेट तो बाहर जाएगा तो यूरिया देगा, बट डू यू अंडरस्टैंड आई सेड ट्रेस अमाउंट। सो इट इज नॉट, वी कैन नॉट रिलाई ऑन स्किन एब्सोल्युटली, बट स्किन करता है, इसीलिए वो दर्जा उसको दे दिया है दैट इवन एक्सक्रीशन इज डन बाय स्किन। लास्टली वी हैव विटामिन डी, एवरीबॉडी नोस दिस, आई शुड नॉट एक्सप्लेन यू दिस आल्सो। Vitamin D is synthesized by your skin in the presence of sunlight. That's the reason you are told to take sunlight in the early hours of the day so that your body can make vitamin D. और earlier इसीलिए बोलते हैं क्योंकि अगर तुम बाद में जाओगे तो इंटेंसिटी इतना रहता है कि वो टैनिंग हो जाएगा, तुमको विटामिन डी तो नहीं मिलेगा, मिल सकता है पर उतने से ज्यादा तो टैनिंग हो जाएगा। सो अर्ली में इंटेंसिटी कम होता है, यू कैन गो आउट। लास्टली वी हैव ग्रेप जी, उसका जी फॉरेनर जब सब लाइक बीच पे लेटते हैं उनका स्किन टैन नहीं होता, सनलाइट वो लगा सनस्क्रीन होता है उनका टैन, वो जाते ही है टैन करने के लिए, रेड लगा बट फॉरेनर मतलब क्या है? इट्स बिकॉज हम जब आगे पढ़ेंगे ना, हाँ अगर हम आगे पढ़ेंगे तो जो भी फेयर कॉम्प्लेक्शन है, जिसको बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन है, बेटा दे गो इनटू द सन, एक तो उनमें वो पिगमेंट कम होता है, वो पिगमेंट तो आने से रहा थोड़ा सा वो रेडनेस ज्यादा हो जाता है, इन्फ्लेमेशन थोड़ा हो जाता है, बर्निंग हो जाता है, एंड दे लाइक दिस टैन स्किन, तो वो लोग टैनिंग करवाते हैं, समझ आता है? जो हार्मफुल है, हाँ टेम्परेरी होता है, हाँ निकल जाएगा थोड़ा टाइम बाद। इट्स लाइक कलरेशन, वो बाल कैसे कलर करवाते हैं, वो कैसे निकल जाता है कलर, समथिंग लाइक दैट। लास्टली वी हैव ग्रिप। ग्रिप का मतलब योर स्किन हैज नेचुरल ग्रिप, क्यों? क्योंकि तुम्हारी स्किन पे रिजेस ऑफ ग्रूव्स है, रिजेस ऑफ ग्रूव्स का मतलब ऐसा
ओके, ऐसे वेव्स कैसे बनाते हैं हम लोग, इसीलिए जब तुम फिंगर इंप्रेशन या थंब इंप्रेशन देते हो तो तुमको लाइंस दिखती है ना, जो नहीं दिखता उसमें व्हाइट पोर्शन दिखता है वो अंदर वाला पार्ट है. हाउएवर यू नो इन वाटर दिस विल गेट अ लिटिल स्वोलन अप. ठीक है, ये यहाँ पे ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वाटर में तुमको ग्रिप का ज्यादा जरूरत है इसीलिए. हाँ हाँ, स्विमिंग पूल में जाएगा, स्विमिंग पूल में जाएगा तो वो ज्यादा टाइम अगर पानी में रहेगा तो यू विल सी दिस, तो चाहिए ना, तो क्या फिसल जाएगा, नहीं तो पता चला. वाटर यू नीड मोर ग्रिप, प्योर यू नीड लेस अमाउंट ऑफ ग्रिप, इसीलिए वो एक एडेप्टेशन है. अदरवाइज ग्रिप इज देयर बिकॉज ऑफ द रिजेस एंड ग्रूव्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द स्किन. समझ आया, ये हो गया तुम्हारा फंक्शन ऑफ द स्किन. नेक्स्ट पार्ट पे जब हम जाएंगे तो तुमको ऐसा देखने मिलेगा दैट स्किन is basically divided into two parts or two classification. One is called as skin proper और दूसरे को हम बोलते हैं derivative of skin. ऐसा वर्ड याद है, पहले भी था एक बार proper वाला एक वर्ड, connective tissue proper. कितने का लगा बेट? बुक खोल के देख लेते हैं. 2 रुपए के लिए मैं इतना मगजमारी करूं? बुक खोल के देख लेते हैं. टिश्यू में तुमको था एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल या नर्वस टिश्यू. जो कनेक्टिव टिश्यू था उसमें फर्स्ट ही लिखा हुआ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर. प्रॉपर नहीं, प्रॉपर मुझे connective tissue binds one tissue with another and also connects. क्या है रे? अरे इधर भी लिखा है keeping them in proper places. ला 2 रुपए दे. कीपिंग देम इन प्रॉपर. आपने बोला नहीं 2 रुपए के लिए आपने बोला नहीं इतना क्यों मगजमारी कर रहे हो? एग्जैक्टली, मत करो. तो जब मैं इधर कॉन्फिडेंस से बोलती हूँ तो तू है ना सुना कर. कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, वो प्रॉब्लम नहीं है, वो टाइपिंग करने में प्रॉब्लम नहीं है कि प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू होना चाहिए, ऐसा नहीं है. जब ये भी मैंने बोला स्किन प्रॉपर और कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, इट मींस इट्स द मेन क्लासिफिकेशन. Okay, so let's talk about skin proper. The skin proper is divided into two layers. Okay, two broad layers that we have. The two broad layers we have is called as epidermis and dermis. अभी इतना तो तुमको आना चाहिए being a science student that what is the meaning of epi? पीनिस. अब epicotyl, hypocotyl याद है? हाँ. Epigeal, hypogeal. The word epi basically means above. तो dermis के ऊपर वाले लेयर को हम क्या बोलते हैं? Epidermis. समझ आया? So epidermis. If at all I take out a little sample of skin from here, है ना, एक अंदर तक का सेक्शन अगर हम लेते हैं तो तुमको दिखेगा ऊपर के लेयर्स को हम बोलेंगे एपिडर्मिस, नीचे का जो थोड़ा सा थिक कंपैरेटिवली थिकर लेयर होता है, डेंस लेयर होता है, उसको हम बोलते हैं डर्मिस. Okay, I am not reading from it, but I am going to tell you, and if at all we miss something, you will tell me what it is afterwards. Okay, so ये हो गया तुम्हारा एपिडर्मिस और यहाँ से लेके यहाँ तक तुम्हारा हो जाएगा डर्मिस. तो तुम एटलीस्ट ब्रेथ में तो देख सकते हो ना that epidermis is a comparatively a little narrower layer, है ना, या little less denser. Epidermis itself is divided into 3 layers. Okay, the first, second and third. इसको हम बोलते हैं corneum, stratum corneum. इसको हम बोलते हैं middle layer और it's also called as stratum granulosum. Granular layer. Granular layer और कुछ दिया दूसरा word. Okay, so we call it as granular layer, and then we have this as called as malphigian layer. Okay, malphigian layer या malphigian layer बोलो, stratum malphigi भी बोलते हैं इसको. The technical terms are given to you. Remember as they are: stratum corneum, granular and stratum malphigi layer. या फिर इसको तुम बोलो cornified layer. मैं दोनों लिख रही हूँ, ये easy है याद रखने में. Cornified, middle और granular, and for this we call it as germinative layer also. It is somewhere given, you need to find it. Yes, dear. Okay? समझ आया? ये मैंने schematic diagram में इसीलिए ऐसा यूज किया, ऐसा लाइन, but it's not this line. अगर तुम देखोगे डायग्राम में तो वो ऐसा कुछ है, ऐसा irregular. केक का आइसिंग कैसा ऐसा लगा दो लोग, है ना? So this, can you see, it is very irregular and it marks the ending of epidermis. So the layer that marks the ending of epidermis is called as
पैपिले। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ ना, पैपिले मार्क्स द एंडिंग ऑफ एपिडर्मिस एंड स्टार्ट ऑफ द डर्मिस। ये समझ आया? पैपिले के बारे में बाद में बोलूंगी जब वो इम्पोर्टेंट कुछ आएगा। लेट्स टॉक अबाउट कॉर्निफाइड। दिस मींस दैट द uppermost layer, ये जो ऊपर का एकदम लेयर तुमको दिखता है, दिस मेड अप ऑफ डेड स्किन सेल्स। And with this you should know the time span of the cells या life span of the cells कितना होता है मालूम है? RBC का कितना? 120. स्किन का कितना है मालूम? 38 days। Roughly 1 month। झाड़ू के टाइम पर भी हो रहता है ना जमीन पर। तो मेरा बुक में भी ऐसा दिया है that जब मैंने बोला कि डेड सेल्स है, that means हमारे स्किन के ऊपर ना डेड सेल्स होते हैं। अब ऐसा है कि वो पूरा का पूरा सा लेयर नहीं निकलता सांप के जैसा, बट जो भी डेड सेल्स है वो धीरे धीरे निकलते जाएंगे। सो तुम जब झाड़ू निकालते हो, झाड़ू निकालने में जितना कचरा रहता है ना, उसमें कितने, उस कचरे में कितना तुम्हारा स्किन सेल होगा। बट बिकॉज दे विल बी सिंगल प्रेजेंट, यू डोंट इवन अंडरस्टैंड दैट ओके दिस इज अ स्किन सेल। तो भी अगर तुमको देखना है कि स्किन सेल कैसा दिखता है डेड सेल, सो इफ यू हैव सीन पीपल स्क्रैपिंग देयर हील्स, वो स्क्रैपर आता है मालूम है? शायद तुम्हारे घर में होगा, मुझे नहीं पता। नहीं। एक स्क्रैपर आता है, फुट स्क्रैपर उसको बोलते हैं। जो नहीं है वो तुझे बराबर मालूम। एक फुट स्क्रैपर आता है, तो उससे हम क्या करते हैं, ये जो हील्स होता है ना अपना, उसको ऐसे स्क्रैप करते हैं। तो क्योंकि उधर डेड स्किन बहुत होता है, तो पानी से नहीं होता। नहीं जाता है। अबे, इट इज डेड ना, हार्ड रहता है। ओके, तो कभी है ना पेडिक्योर कराने चले जाना तो तेरे को मालूम पड़ेगा। हमेशा बनाया कराते हैं, हाँ लटकिंग कराते हैं। Anyways, so if at all तुम अगर देखोगे तो all that powdery thing that comes out is nothing but your dead skin. ठीक है? वो dead है, इसीलिए you don't scream out of pain. It's dead. जैसे ये, अगर इसको काटते तो क्या चिल्ला दे क्या? नहीं ना? It's dead. Okay? मैंने बोला यहाँ से, तेरा मैं अगर यहाँ से काट दूंगी तो मैं चिल्लाऊंगी अभी, नहीं ना? बट अगर यहाँ से ऐसा खींचेंगे तो ऑफ कोर्स चिल्लाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे तो वो लिविंग है उसका रूट। ओके, सो आई होप दिस मच इज क्लियर। कॉर्निफाइड, ठीक है जी। फिर वो कैलिसिस कुछ होता है ना, हाँ वो कैलिसिस तो वो डेड पर उसके अंदर तक ब्लड सप्लाई है। सो इफ इट इज टेकन आउट ऐसा पूरा ना, तो तुमको पेन होगा, बट ऊपर से इफ यू चिप इट आउट, जैसे मुझे एक बार यहाँ हुआ था क्या? ओके, कैलिस बोलते हैं उसको, कॉर्न बोलते हैं। कॉर्न इज डिफरेंट, कैलिस ऊपर उठता है। कैलिस का मतलब है वो जिम भी जो करता है, पता है? जिम जो करता है, वेट लिफ्ट करता है, उसको यहाँ होगा। इफ इट ऑल यू टच, इट्स वेरी वेरी टफ, सी वेरी हार्ड। दिखाओ, ठीक है? देन इफ इट ऑल एनीबॉडी इज डूइंग स्ट्रेनियस एक्टिविटी, जिम का मैंने बोला क्योंकि वो उसमें लिफ्टिंग करते हैं, तो लिफ्टिंग में यहाँ पे प्रॉब्लम होगा। इफ इट ऑल समबडी इज राइडिंग द बाइक, तो इवन वो ना ये पहनता है, ग्लव्स पहनता है, साइकिल भी, तो यहाँ पे हो जाता है। अभी आई हैव अ हैबिट ऑफ ऐसे, इफ आई होल्ड द हैंडल वेरी नियर, तो मुझे यहाँ पे हो जाता है ऐसा। मुझे इधर कॉल हुआ था एक बार। ओके, कराटे मुझे भी हुआ, मुझे भी हुआ। कराटे का भी कॉल आया था। वो कॉर्न जो है वो एक ही बार होता है, ऐसे नहीं कि इट्स अ रेगुलर एक्टिविटी, सो इवन दैट इज रियली टफ। तो बैंडेज लगाने से निकल जाएगा, तभी डिप्रेशन होगा। नाउ नोबडी कैन से दैट आई हैड समथिंग, बट जब हुआ था तब एक डिप्रेशन हो गया था, क्योंकि इट हैड टू कम आउट फ्रॉम दैट रूट। ओके, मेरे को तो 1 महीना लगा ठीक होने तो में। टाइम लगता है क्या? ऐसे नहीं होता, नहीं करने का होता है। ऑलराइट, दिस इज डेड, दिस हैज नथिंग बीन गिवन। आई गेस 3 और 4 लाइन का एक पैराग्राफ छोटू सा दिया है तुमको कि ग्रैन्युलर लेयर ये दोनों के बीच वाला लेयर है, एंड इट हेल्प्स टू गिव सेल्स टू दिस। I'll explain you how it gives cells afterwards. Let's come to this, which is very important. Okay, this layer is called as germinative or Malpighian layer for a reason. क्योंकि ये सेल्स बनाता है। Do you remember mitosis कभी पढ़ा हुआ है या सेल डिवीजन पढ़ा हुआ है? एक सेल से 2 सेल बनना, तो ये सेल डिवीजन कहाँ होता है? जर्मिनेटिव लेयर। इसीलिए तुम्हारे सेल्स बनते जाते नहीं यहाँ पे। अब तुम अगर मुझे पूछोगे कि क्यों बनने हैं, क्योंकि यहाँ से तो सेल्स जा रहे हैं। So what happens is, जब सेल नए बनते हैं यहाँ पे, they'll be pushed above. It's like if I tell them to leave, तो ये बेंच खाली नहीं रहेगा, तुम लोग ये बेंच पे आ जाओगे, ठीक है? फिर तुम लोग अगर जाओगे तो पीछे वाला बेंच आगे आता जाएगा। So Malpighian layer gives cells to which layer? Shifts the cells to granular. It shifts the layers to the cornified.
और धीरे धीरे जब कॉर्निफाइड में मर जाएगा 28 डेज खत्म हो जाएगा, इट विल बी बोन आउट। इजी समझ आ? अब यहाँ पे कहीं पे शायद कॉर्निफाइड में तुमको कैरेटीन का भी जिक्र किया होगा। हाँ हाँ बाद में भी आएगा। कैरेटीन तुमको वर्ड याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे भी एक वर्ड बोलूंगी तो यहाँ का एक वर्ड बोलनी पड़ेगी, कैरेटीन। नो दिस इज कैरेटीन, वो जो है वो दूसरा, दिस इज कैरेटीन। कैरेटीन इज अ डेड प्रोटीन, या इट्स अ प्रोटीन, यू रिमेंबर लाइक दैट, ओके। क्योंकि कैरेटीन तुम्हारी स्किन में है तो तुम्हारा स्किन थोड़ा सा टफ रहता है। ज्यादातर कैरेटीन किधर होता है? नेल्स में होता है और हेयर में होता है, इसीलिए ये टफ स्ट्रक्चर है। समझ आया? तो कैरेटीन हैज बीन प्रेजेंट एंड इफ यू सी सम ऑफ द कमर्शियल और एड्स, तो उसमें बताते हैं कैरेटीन बूस्ट करता है, ये शैम्पू यूज करो तो कैरेटीन ज्यादा होगा तो तुम्हारा हेयर स्ट्रॉन्ग ज्यादा होगा। सिंपल बात है, कैरेटीन अच्छा होगा तुम्हारे बालों में तो स्ट्रॉन्ग होगा, कैरेटीन कम होगा तो तुम्हारे बाल ठीक होंगे। ओके, नेल्स में भी ऐसा ही है। नेल्स किसी का पता है बहुत ब्रिटल होता है, मैंने वर्ड समझ से, तो अगर बढ़ता है ना नेल जब बढ़ाते हैं, डोंट नॉट इंक्रीज इतना, अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ता है तो किसी का बहुत ब्रिटल होता है क्योंकि कैरेटीन का कमी है। कमिंग टू दिस, अगर इसमें एक वर्ड बोला है जो है प्रोटीन, प्लीज रिमेंबर, और ये आता है इफ आई आस्क यू प्रोटीन दैट इज प्रेजेंट इन द स्किन, कैरेटीन, और इसमें है देयर इज समथिंग कॉल्ड एज व्हिच इज अ पिगमेंट, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मेलानिन या मेलानाइन, okay, and it is nothing but pigment. For everyone you should know the meaning of the word pigment. Pigment means something that imparts color. फूड पिगमेंट्स बोला जाता है। फूड पिगमेंट्स मालूम है? हाँ, ये नहीं, ये ब्राउनिश टिंच, ओके, सो डार्क पिगमेंट बोल सकते हैं। फूड पिगमेंट का मतलब होता है फूड कलर, वो रेड डालेंगे तो रेड हो जाएगा, ग्रीन डालो तो ग्रीन हो जाएगा। तो ये है स्किन पिगमेंट। सो एवरीवन हैज दिस स्किन पिगमेंट इन देम। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, स्किन पिगमेंट ज्यादा होगा तो डीपर कलरेशन होगा, स्किन पिगमेंट कम होगा तो फेयर कॉम्प्लेक्शन होगा।